Hello all, welcome to the channel again. So this session is on model evaluation technique. So basically in this session we are going to discuss about the different technique used for the model evaluation, or we can say different technique we can use to evaluate the performance of model. Like we know the different types of steps used to build the machine learning model, like model training, model validation, how to collect the data, how to pre-process the data, right? So this is the last step, we can say. By using this step we can calculate the overall performance of the model, whatever model we have developed. That model is accurately working or working or not, that we can calculate here. So yes, we can start the today's session. So this is about the मॉडल इवेल्युएशन. सो जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं, जब भी मान लो जैसे हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर दिया, हमने उसको ट्यून कर लिया बाय यूजिंग द वेरियस डिफरेंट हाइपर पैरामीटर ट्यून टेक्निक, और बाय यूजिंग द डिफरेंट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक, एंड फाइनली in the final step we have to evaluate the performance of model by using the unseen data, जिसे हम टेस्ट डेटा भी कह सकते हैं. तो वो जो टेस्ट डेटा होता है ना, उसके ऊपर हम उसे इवेल्युएट करते हैं. हम ये चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड अगर हमारे पास कुछ डेटा है, वो अगर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में वो हमें किस तरीके की प्रेडिक्शंस देता है, उस केस में वो कितना अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है. दैट इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, राइट? सो here these are the some important point related to the model evaluation. First we'll discuss about the different points, and then we'll move towards the different technique used for the model evaluation. So here first point is model evaluation in learning. Machine learning refers to the process of evaluating the performance and the quality of the trained machine learning model. मतलब here in case of this model evaluation step, we have to evaluate the performance, or we can say the quality of the trained model. ऐसा मॉडल की जो हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसे हमने ट्रेन किया है, उस मॉडल को हम फाइनली टेस्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल by using the unseen data, or we can say the real world data, right? So क्योंकि हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल यूज करने वाले हैं ना, वो उस पे जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए यूज करने वाले हैं, तो अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो में वो हमारा जो मॉडल हमने डेवलप किया है वो कैसे वर्क करता है, वो हमें इवेल्युएट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस अनसीन डेटा. So this is nothing but the model evaluation, or evaluating the performance of the model, right? So the second point is it involves the various technique and metrics that helps to determine how well the model is performing, and whether it can be generalized well to new unseen examples. That means if you have to evaluate the model, if you have to check the performance of the model, there are the various techniques and metrics are available. सो जो टेक्निक्स और मैट्रिक्स है वो हम नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर ही लेंगे. बट यहाँ पे वो हम क्यों यूज़ करते हैं टेक्निक्स और मैट्रिक्स, क्यों उस केस में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है जो हमने डेवलप किया है वो कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अगर हम उसे कोई रियल वर्ल्ड डेटा अगर हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर उसके सामने कुछ अनसीन एग्जाम्पल दिया आ जाता है तो, राइट? सो और उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल हमने डेवलप किया है वो कितना जनरलाइज मॉडल है, कितना ऑप्टिमल मॉडल है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड द मॉडल इवैल्यूएशन. So the last point is model evaluation is a crucial for understanding the strength and weaknesses of the model and making the informed decision about the deployment. So model evaluation से ही हमें पता चलता है कि हमारे मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, राइट? अगर मान लो हमारा मॉडल जो ट्रेनिंग के केस में जितना हमें एक्यूरेसी मिल रहा था, सिमिलर एक्यूरेसी अगर हमें टेस्टिंग के केस में मिल रहा है, सो वी कैन से दैट आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट? सो वी कैन गो फॉर द डिप्लॉयमेंट.
सो फाइनल जो जिसे हम गो लाइव कहते हैं उसको हम जा सकते हैं, बिकॉज हियर वी नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द मॉडल, राइट। अगर कुछ एरर्स है तो हम उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट हियर at the time of evaluation, after calculating the overall performance of model, finally we are going for the deployment. That is the final step in development of machine learning model, right? So here this is the main important step, that is model evaluation. अभी मॉडल इवेल्युएशन के बारे में तो हमें पता चल गया कि हमारा मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनारियो में, वो हमें देखना है। बट हियर व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर द मॉडल इवेल्युएशन। सो वो टेक्निक कौन सी है कि जो यूज करके हम मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। सो वो हम टेक्निक के बारे में देखेंगे। सो हियर you know about the supervised machine learning and different types of supervised machine learning. Here in, if you are considering the supervised machine learning, classification problems are there and regression problems are there, right? So now again you know the difference between the classification and regression. Here categorical output and here numerical output or continuous value, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मान लो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम हमने यूज़ किया है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम अगर है, उसके लिए अगर हमें मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम मॉडल इवेल्युएट कैसे करते हैं। और अगर रिग्रेशन की केस है तो रिग्रेशन की केस में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन से मैट्रिक्स यूज़ करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द मॉडल परफॉर्मेंस, राइट। सो इफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आर देयर, वी कैन कैलकुलेट or we can calculate or we can evaluate the performance of model by calculating the accuracy, precision, recall, F1 score, area under the curve, AUC, and confusion matrix. Basically all these are the metrics related to the confusion matrix, or we can say the terms related to the confusion matrix, right। जो confusion matrix के ऊपर आपको एक dedicated video मिलेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, जिसमें आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो इफ द प्रॉब्लम इज बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन, वी कैन यूज दिस टेक्निक्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, राइट। ये जो सारे एक्यूरेसी मिलेंगे आपको ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ही मिलेगी, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। बट हियर यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड these names of this technique used for the classification. Whereas in case of a problem is related to the regression, or if you are using the machine learning or you are building the machine learning model for the regression problem, so in case of a regression, we know we'll get the numerical output. So here these are the some techniques used to evaluate the performance of the regression model by calculating the mean squared error, by calculating the root mean squared error, by calculating the mean absolute error, by calculating or by using this technique, that is R square or coefficient of determination. This fifth technique is adjusted R square, and this last technique is explained variance score. So these are the different techniques we can use to evaluate the performance of the model. क्लासिफिकेशन की केस में इतनी सारी है और रिग्रेशन की केस में ये सारी है। सो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो इस टेक्निक के ऊपर पूछा जाता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर पूछा जाता है। हम आने वाले वीडियोस में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि जो कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे गए हैं, right? So these are the techniques used for the model evaluation. Now performance metrics for classification. अगर classification की केस में जो हमने टेक्निक्स देखी तो उसको थोड़ा मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फर्स्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अ टेबल दैट प्रेजेंट्स अ ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव काउंट्स। सो बेसिकली ये एक टेबल होता है जिसमें आपको ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, उसके बाद ट्रू निगेटिव, ये जो वैल्यूज़ मिलती है। अभी ये ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव क्या है, जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का वीडियो देखेंगे तब आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा। और उसके बाद आप इसी ट्रू निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर आप ये एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हो। एक्यूरेसी इज़ नथिंग बट द इट इज़ द
calculate the proportion of the correctly classified instances over the total number of instances. मतलब total आपके जो सैम्पल्स में से कितने एक्यूरेटली क्लासिफाइड कर दिए हैं मशीन लर्निंग मॉडल ने, तो वो होता है आपका एक्यूरेसी. तो यहाँ पे मतलब आपका ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल्स, ये आपका फॉर्मूला आता है एक्यूरेसी का. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एक्यूरेसी. Then third term is precision. Measure the proportion of true positive prediction out of a total predicted positive instances. मतलब ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितने हैं आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से, राइट. सो यहाँ पे आपको प्रिसीजन कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है. क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है वो और वो ट्रू है, मतलब करेक्टली उसे उसने पॉजिटिव की कैटेगरी में डाला है, और ये फॉल्स पॉजिटिव मतलब करेक्टली उसने उसको फॉल्स पॉजिटिव की केस में डाला है. ठीक है. सो ये हम जब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा, राइट. सो हियर एक्चुअल प्रेडिक्शंस आर करेक्ट, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस आर एक्चुअली करेक्ट. सो प्रिसीजन यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट. So the next is recall. Again, you can see this is the recall, or you can also call it the sensitivity or true positive rate, TPR we can say. So the recall is calculate the proportion of the true positive prediction out of the total actual positive instances, right. It measures the model's ability to identify the positive instances correctly, right. So the recall you can calculate by using this formula, that is true positive divided by true positive plus false negative, right. So F1 स्कोर. अभी यहाँ पे अगर आपको ये ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू फॉल्स निगेटिव क्या होता है, इसमें अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि हम जब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का वीडियो जब आप देखोगे तब आपका सारा डिटेल ये कवर हो जाएगा. आपको सारा ये जो है वो डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे होता है, किसको हम ट्रू पॉजिटिव कैसे कहते हैं, किसको ट्रू निगेटिव कहते हैं, किसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं. ठीक है. सो हियर ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, राइट, लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल. फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला, राइट. सो F1 स्कोर क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल. सो F1 स्कोर इज नथिंग बट द हार्मोनिक मीन of precision of and recall. So this is the formula for calculating the F1 score, right. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम ये फॉर्मूला यूज करके परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, राइट. जो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस यूनिट में. द एंड दिस लास्ट वन इज अ एरिया अंडर द कर्व, राइट, ROC कर्व जिसे हम कहते हैं. उसमें हम ट्रू पॉजिटिव रेट और उसके बाद ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे गलती से फॉर्मूला 2 बार आ गया है. ठीक है. सो प्लॉट द ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट. हियर द जो कर्व हम प्लॉट करते हैं जो वो होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, दैट इज TPR एंड FPR के बीच में. ठीक है. सो एट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड सिलेक्ट होता है, उसके ऐसे इस तरीके से एक कर्व जो है वो ड्रॉ होता है और एरिया अंडर द कर्व हम सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये और एक टेक्निक है जो कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जिससे हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन, राइट. नाउ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ रिग्रेशन, राइट. और रिग्रेशन की केस में हम कौन सी टेक्निक्स यूज करके परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं. तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं मीन स्क्वायर एरर, दैट इज MSE. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन स्क्वायर एरर वी नो दिस फॉर्मूला, राइट, दैट इज MSE मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ y minus y dash, right, ब्रैकेट स्क्वायर. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर. सो एरर है, राइट, एरर है, तो एरर का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. एरर अगर हमें ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब एक्यूरेसी आपका कम होगा, right. So again we know we are always trying for the minimum error, right. So by calculating these values of error we can try to evaluate that regression model. Now again the next technique is by calculating the root mean square error. So इसी को अगर हम अंडर रूट में कर दे तो ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर एरर.
तो square root of MAC, right? The third technique is mean absolute error, MAE, and the formula for calculating the MAE is this MAE is equal to 1 by n summation of mod of y minus y dash, right? So ये कुछ टेक्निक्स है जो कि रिग्रेशन की केस में यूज होती है, और ये कुछ और दो टेक्निक्स है दैट इज आर स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अभी देखो ये जो टेक्निक्स है ना, ये हम बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं, इसके रिलेटेड अगर आपको इसके डिटेल में जाना है तो इसके पीछे मैथमेटिक्स है, इसके पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन आपको समझना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आर स्क्वायर टेक्निक, आर स्क्वायर मेथड अगर या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो उसके लिए पूरा का पूरा उसका एक इक्वेशन है, ठीक है? बट यहाँ पे मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर द टेक्निक रिलेटेड टू द performance evaluation of regression model as well as a classification model, right? So only understand or only remember the names of these techniques, right? If you want to go into the detail, you can search it on any other platform using available on internet, right? So the last method is adjust R square. So this is the formula for finding out the value of adjusted R square final calculation, right? So here by using this technique you can calculate the or you can evaluate the model performance if we are considering the regression problem, and if we are considering the classification, we can plot the confusion matrix. Also we can calculate the different terms related to the confusion matrix, that is accuracy, recall, F1 score, precision, like this, right? So this is about the model evaluation and different techniques used for the model evaluation. I hope ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन या F1 स्कोर कैलकुलेट करना होता है। सो यस, दिस इज़ अबाउट द टुडेज सेशन। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।